I audible? Yes, carry on, Manjusha. Yes. Just a moment. Yeah. Screen visible here? Is it visible? Screen is not visible yet. Okay. Just a moment. Yeah. Is it visible now? Yes, it's visible now. Yes. Okay. So, yeah, fine. Yes. Yeah, just hold on for one more minute. Just a moment. Yes. Yeah. Now, extremely sorry, everyone. There are some technical issues at my side. So thank you so much for being patient with us. So once again, let us continue with our topic. Yes. So what questions we were discussing? In how many ways can three integers? Okay, I guess this was the next question. हम previous question पे थे. Okay, just a moment. Yeah, just a moment. Yeah, this we done. This question we already done. Yeah, how many positive integers, not integer numbers, not more than 4300 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 if repetitions are allowed. Okay, yes, fine. So हमें कितने डिजिट का इस्तेमाल करना है? 5 डिजिट का इस्तेमाल करना है एंड हमें कितने नंबर बनाने हैं? We have to start from 1 and we have to make till 4300. Okay, so yes. So once again, guys, we are starting with the session again. So thank you so much, everyone, for your patience. Please stay tuned with us and let us continue with the session. Thank you so much, everyone. Look here. How many positive integers number we can form? So 1 से लेके हमें 4300 तक के नंबर बनाने हैं. So just once again repeat हो जाएगा. देख लो अभी 5 डिजिट हमारे पास है. तो सिंगल डिजिट नंबर कितने बनेंगे? देखो 0 भी हमें इस्तेमाल करना है. 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. So only 4 numbers are possible because 0 we can't consider it as a positive integer. ये allowed नहीं है. What about 2 digit number? 2 digit number देखो. Now at first position हम सिर्फ 4 नंबर ही इस्तेमाल कर सकते हैं. We can't use 0 over here. And definitely at second position हम 0 भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So 4 into 5 total 22 digit numbers are possible. What about 3 digit numbers? Look here. First digit we can use 4. Second place we can use 5. And again third place we can definitely use 5 digits. बस फर्स्ट प्लेस पे 0 अलाउड नहीं है इसलिए 4 हमें इस्तेमाल करना है. ओके एंड एज वी नो हमें सभी नंबर्स बनाने हैं एंड द लिमिटेशन इज व्हाट 1 से लेके 4300 तक रिपीटेशन इज अलाउड. सो 4 into 5 into 5 that is nothing but 100. नाउ 4 डिजिट नंबर. अभी देखो जब हम 4 डिजिट नंबर बनाने जा रहे हैं तो हमें 1 से शुरू होने वाले, 2 से शुरू होने वाले और 3 से शुरू होने वाले ये सभी नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे. ठीक है. अगर हमने 4 से शुरू होने वाले नंबर्स कंसीडर किए तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ सकती है जहां पे 4400 के आगे भी नंबर आ सकते हैं और वो मुझे नहीं चाहिए. सो 4 डिजिट नंबर के लिए सबसे पहले हमें 1 से शुरू होने वाले, 2 से शुरू होने वाले और 3 से शुरू होने वाले ये नंबर्स चेक करने हैं. सो फिक्स 1, 2 and 3 at first position. So only 3 digits over here. Second position 5, third position 5, fourth position 5. As repetition is allowed, that is completely fine. So how much such numbers are possible? 375 such numbers are possible. All right. Now
अभी हमें क्या करना है, पहला डिजिट 4 रखना है, तो पहले डिजिट को फिक्स करो एट अ फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया हमने 4 को। नाउ सेकेंड पोजीशन पे कितने डिजिट आ सकते हैं, देखो अगर पहला डिजिट 4 है, सेकेंड पोजीशन 1 आ सकता है, 4200, 4200 वाले नंबर आएंगे, 4100, 4200 and next will be 4300. Remember one thing, हमें 4400 वाले कंसीडर नहीं करने हैं, ऑल राइट। सो अगेन एट सेकेंड पोजीशन हमें फिर से 3 चॉइस लेने पड़ेंगे, ओनली 3 चॉइसेस। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन हो गया, third position, fourth position, there is no limitation at all, you can put 5 digits over there. So likewise, if we are putting 4 at its first position, so this possible numbers can come and only 75 such cases are possible. And last digit हमें कौन सा consider करना है, 4300 as a single digit, ठीक है। तो चलिए अभी टोटल नंबर्स कितने हैं रे, ये जो यहां तक मिले हैं उनको सभी को ऐड कर दो, ऑल राइट। सो टोटल नंबर्स आर 575 नंबर, 1 digit number, 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number, and this 4 digit number whenever you are keeping 4 at its first position and last digit कौन सा है यहाँ पे 4300, all right। So total 575 such cases are possible. Yes, so I hope this question is clear to everyone. Now let's proceed towards the next question. चलिए अभी आई गेस सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सभी को वीडियो ऑडियो सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। सो ठीक है, चलते रहता है, ऐसा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इग्नोर करके हमें आगे चलना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई कभी रुकती नहीं है। चलिए लेट अस कंटिन्यू विद द सेशन अगेन। हाउ मेनी 6 digit even numbers can be formed from digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 so that the digit should not repeat and second last digit must be even. Now look here, हमें 6 डिजिट नंबर बनाने हैं एंड दे मस्ट बी इवन। तो इवन नंबर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लास्ट का पोजीशन फिक्स करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट का, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में आप क्या क्या रख सकते हो रे, यू कैन पुट 2, you can put 4 and you can put 6. So only 3 digits, only 3 cases are possible at the last position. Remember one thing, सबसे पहले last position को hit करना है क्योंकि हमें only even numbers चाहिए। Now what the question says, एक तो repetition नहीं चलेगा, दूसरा तो second last digit भी क्या होना चाहिए, even ही होना चाहिए। Now look here, सेकेंड लास्ट डिजिट अगर हमें इवन करना है तो अगेन मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, 2, 4 एंड 6 ही यूज करना पड़ेगा। एज द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आई कांट यूज द डिजिट विच इज यूज्ड एट लास्ट पोजीशन। जो यहाँ पे यूज किया गया है वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ओनली 2 केसेस पॉसिबल है, ठीक है। नाउ 1 से लेके 7 तक ही डिजिट हमारे पास है जिसमें से 2 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो फर्स्ट पोजीशन कितने आएंगे रे, 5 आएंगे, सेकेंड पोजीशन 4, थर्ड पोजीशन 3 एंड दिस फोर्थ पोजीशन 2, ठीक है। 2 डिजिट हमने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं इवन का कंडीशन फिक्स करने के लिए हियर and second last digit must be also even. So now let us calculate this. 5432 is nothing but a 5 factorial, 120 into 2 240, okay, 240 into 3 it is 720. तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है रे, ऐसे टोटल 720 नंबर्स पॉसिबल है, ओके। सो प्रिटी सिंपल क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन परम्यूटेशन। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। या अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन, व्हाट इज, यस कॉम्बिनेशन क्या कहता है, देखिए अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लुक हियर, NCR is equal to what, n factorial into r factorial, sorry n factorial upon r factorial into what, n minus r factorial, where r greater than n is invalid. Now what is r and what is n, let us quickly have a look over here. N is nothing but number of total objects and r is nothing but number of selected objects.
अभी देखो टोटल एक ग्रुप हमारे पास रहेगा जिसमें कितने ऑब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, n ऑब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, एंड वी हैव टू सेलेक्ट सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स which satisfies our condition. Now remember one thing, always देखो ये कंडीशन क्या कहता है, r greater than n is invalid. Why it is invalid? Can you select 7 members from a group of 4 members? 4 मेंबर के ग्रुप में से 7 लोग आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नो, नॉट पॉसिबल. 3 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग सिलेक्ट हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल. 7 पीपल का ग्रुप है, कैन यू सेलेक्ट 5 मेंबर? डेफिनेटली. 10 पीपल का ग्रुप है, कैन यू सेलेक्ट 8 मेंबर्स? यस, डेफिनेटली कर सकते हो. तो जो सिलेक्शन है वो कभी भी मैक्सिमम नंबर से, मैक्सिमम केसेस से ज्यादा नहीं हो सकता. आपको एग्जाम में मार्क कैसे मिलते हैं? 20 आउट ऑफ 20, 30 आउट ऑफ 30. ऐसा कभी पॉसिबल होगा कह रहे 20 से 25 मार्क मिले हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके, ऑल राइट. सो दिस इज द confirm that r greater than n must be invalid. ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे लिए आ रहा है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक एट इट. In how many ways can a cricket team of 11 players be chosen out of 15 players? So what is n? n क्या है यहाँ पे हमारा? 15 है. And out of this 15 member हमें कितने members को select करना है? हमें सिर्फ 11 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है. चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं. NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? इट इज 15. सो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ r? कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 11 लोगों को सिलेक्ट करना है. एंड हियर 15 माइनस 11 n माइनस r ब्रैकेट का फैक्टोरियल. इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, बाद में उसका फैक्टोरियल लेना है. सो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. लेट अस क्विकली सॉल्व. कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो, इस 15 फैक्टोरियल को आपको रिवर्स में लिखते आना है. ठीक है, यस. और उसी वैल्यू तक लिखना है. जरा डिनोमिनेटर को देखते देखते लिखो. डिनोमिनेटर में क्या है? 11 फैक्टोरियल. तो सिर्फ आप न्यूमरेटर को क्या करने वाले हो? 11 फैक्टोरियल तक ही रखने वाले हो. 15, 14, 13, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 4, 3, 2, 1. ओके, सो दिस 11 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल. फैक्टोरियल के साथ फैक्टोरियल जरूर कैंसिल हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी ऑफ सेम नंबर. ठीक है, यहाँ पे आपको लगेगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल कैंसिल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है. फैक्टोरियल कोई वेरिएबल नहीं है, वो एक नोटेशन है. वेरिएबल कैंसिल होते हैं. हाँ, 5x बाय 3x आपने लिखा है उस क्वेश्चन में, तो ये x कैंसिल हो सकता है, बट फैक्टोरियल कभी कैंसिल नहीं होगा. बट हाँ, सेम नंबर का फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, डेफिनेटली ये कैंसिल हो सकता है. सो दिस गेट कैंसिल. 4 3s आर 12, इस 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 2 7s आर 14. 15 into 7 into 13. Let us do this. It will be what? 1 3 6 5. तो ऐसे कितने पॉसिबल वेज है रे जिसमें हम ये सिलेक्शन, ये टीम बना सकते हैं क्रिकेट प्लेयर का? तो ऐसे 1365 वेज है जिसमें हम 11 प्लेयर्स का टीम बना सकते हैं आउट ऑफ 15 प्लेयर्स. ओके, यस. चलिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 इंटीजर्स बी सिलेक्टेड from the set of 1 2 3 up to 37 such that sum of the 3 integers must be a odd number. ठीक है, अभी देखो सम ऑफ दोज इंटीजर्स क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑड होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताने जा रही हूँ. व्हाट आर दोज रूल्स? व्हेन यू ऐड 2 ऑड नंबर्स इट विल गिव यू अ इवन नंबर. जब आप 2 ऑड नंबर्स ऐड करते हो तो आपको उनका समेशन इवन मिलता है. जब आप 2 इवन नंबर्स ऐड करते हो ऑलवेज समेशन इवन रहता है. ठीक है, एंड जब आप एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर ऐड करते हो तो समेशन क्या रहता है? उसका कंपल्सरी ऑड रहता है. अब हमें करना क्या है? हमें समेशन ऑड बनाना है. तो कैसे ऑड बनाएंगे? तो देखो,
सबसे पहला केस, ऑड प्लस ऑड गिव्स मी इवन. लुक हियर, odd number plus odd number gives me which number? Even number. Now if I add another odd number in this even number, I will get summation as odd number, right? So first odd number, second odd number and third odd number. मुझे कितने odd number की जरूरत है समेशन odd मिलने के लिए? मुझे 3 odd numbers की जरूरत है. तो अगर तीनों के तीनों नंबर odd है, मेरा समेशन भी क्या रहेगा रे? odd रहने वाला है. ठीक है? Another possible case. Now look at the third one. odd plus even क्या रिजल्ट मिलता है? ऑड प्लस इवन रिजल्ट ऑड मिलता है. अगर हम इसमें एक बार और इवन नंबर मिला दे, फिर से मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? फिर से मुझे रिजल्ट ऑड मिलेगा. सो वन ऑड नंबर, वन इवन नंबर एंड वन मोर इवन नंबर विल डेफिनेटली गिव मी अनदर ऑड नंबर. समेशन क्या मिलेगा रे मुझे? ऑड नंबर का मिलेगा. ठीक है? सो आइदर आप 3 ऑड नंबर ले लो या फिर टेक वन ऑड एंड 2 इवन. Yes, पहला कंडीशन क्या कहता है? odd plus odd gives me result even. So if I add one odd number in this, I will get odd number. Odd plus even, I get odd number. If I add one more even number, the result will be odd. So either 3 odd or 1 odd and 2 even. ये possible cases है. Now look here, अभी कैसे solve करना है इसको? सबसे पहले तो देखो, हमें ये जो गिवन सेट है 1 to 37 का, हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से इवन ऑड नंबर फाइंड करने पड़ेंगे. तो अगर हमारा इंटरवल 1 to 36 रहता, तो हमारे पास 18 ऑड नंबर रहते, 18 इवन नंबर रहते, राइट? यहाँ पे मैं कॉर्नर पे लिख रही हूँ, आई होप सभी को दिख रहा है. देखो यहाँ पे 1 to 37 का सेट है. अगर वो सेट 1 to 36 रहता, तो आपको 18 इवन नंबर मिलते, 18 ऑड नंबर मिलते. बट 37 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का काउंट एक से बढ़ा दो, total odd number you will get it as 90. all right, yes, I repeat again, अगर 1 to 36 रहता तो हमें कितने इवन नंबर मिलते? 18 इवन, 18 ऑड. बट 37 यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसलिए वन मोर ऑड नंबर एंड दैट इज नथिंग बट द ऑड नंबर विल बी 90. नाउ हाउ टू पुट दिस इन अ कंडीशन? चलो, ऑड नंबर मिल गए हमें 18, इवन नंबर हमें मिल गए, सॉरी, आई रिपीट दिस, मैं यहाँ पे पहले इरेज करती हूँ. टोटल हमें 19 ऑड नंबर्स मिल गए एंड टोटल हमें 18 इवन नंबर्स मिल गए. ठीक है? यस. नाउ व्हाइल सिलेक्टिंग ऑड नंबर्स, पहला केस क्या कहता है? मुझे 3 ऑड नंबर चाहिए. सो कैसा होगा रे सिलेक्शन? 19C3. ठीक है? सिलेक्शन कैसा होगा? देखो 19C3 फॉर फर्स्ट केस टू बी ट्रू, मुझे यहाँ से समेशन क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा. नाउ लुक एट द सेकेंड वन. I need one odd and 2 even numbers. So देखो, 2 इवन नंबर कैसे मिलेंगे? 18 इवन नंबर से सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो 18C2 कौन से मिलेंगे हमें भी पता नहीं है. एंड वन ऑड नंबर कहाँ से मिलेगा? 19C1 से मिलेगा. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे प्लस सिंबल, यहाँ पे मल्टीपल सिंबल क्यों है? तो वजह है उसके पीछे एंड और. ठीक है? और कब रहता है रे? आइदर दिस और दिस. या तो मुझे ऐसा दो या तो मुझे वैसा दो. या तो मुझे तीनों ऑड नंबर चाहिए, अदरवाइज आई वांट वन ऑड एंड 2 इवन. ठीक है? सो आइदर दिस और दिस, इसलिए यहाँ पे सिंबल प्लस. बट हाँ, लुक एट द सेकेंड कंडीशन. इफ आई वांट सम टू बी ऑड, कंपल्सरी आई वांट वन ऑड एंड 2 इवन. So this gives me one odd and 2 even. This is compulsion, इसलिए and. मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. चलिए अब क्विकली इसको हम सॉल्व करने वाले हैं. 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, प्लस 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, इसका डिफरेंस 16 फैक्टोरियल. नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट दिए थे NC1. NC1 का आंसर क्या होता है? n होता है. ठीक है? सो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? 19C1 का आंसर 19 ही रहेगा. चलिए अभी इसको एक्सपांड करते हैं. 19, 18, 17, 16 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 16 फैक्टोरियल. तो ये 16 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. देन हियर 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 फैक्टोरियल.
सो दिस आल्सो गेट कैंसल। ठीक है, अभी आगे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैन वी कैंसिल दिस 6 3s are 18? यस वी कैन डू दिस डेफिनेटली। हियर यहाँ पे कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, 2 9s are 18, डेफिनेटली कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, 19 into 3 into 17 plus 9 into 17 into 19. If you could see both the equation, here 19 and 17 is available, here 19 and 17 is available. Can we take 19 and 17 common? Definitely. जब आप 19 and 17 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा रे, यहाँ से 3 यहाँ से 9, सो 3 plus 9 कितना आता है 12, so 17 into 19 into 12 and thus you will get the answer 3876। तो ऐसे कितने वेज पॉसिबल है रे, 3876 वेज पॉसिबल है। रूल्स आपको दिए गए हैं, कंडीशन भी आपको समझाया गया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। How many vehicle registration plate numbers can be formed with digits 1 2 3 4 5 and no digit being repeated? Repetition is allowed nahi hai. If it is given that the registration number can have 1 to 5 digit, एक डिजिट का भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, 2 डिजिट का भी, 3 डिजिट का भी, 4 डिजिट का भी, एज वेल एज 5 डिजिट का भी रहेगा। अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट वहां पे क्या था, एक लिमिटेशन था। व्हाट वाज दैट लिमिटेशन, ओनली 4300 तक ही फाइंड करना है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लिमिटेशन है क्या कि यहाँ से यहाँ तक ही फाइंड करो, ऐसा कोई इंटरवल नहीं है। तो चलिए, सिंगल डिजिट नंबर विल बी व्हाट, एक डिजिट के जो भी नंबर है वो मुझे कितने मिलने वाले हैं, सिर्फ 5 मिलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास कौन से डिजिट है रे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो सिंगल डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे सिर्फ 5 मिलेंगे। व्हाट अबाउट डबल डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर, डबल डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर्स मुझे कितने मिलने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, जीरो यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन पे 5 नंबर रख सकते हो क्या, बिल्कुल रख सकते हो। व्हाट अबाउट सेकंड पोजीशन, कैन यू यूज द नंबर रिपीट, कर सकते हो क्या, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कितने आएंगे रे, 4 ही आने वाले हैं। तो 2 डिजिट नंबर कितने बनते हैं, 20 बनते हैं। ठीक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स आर 20। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर्स, अब 3 डिजिट नंबर के लिए फर्स्ट पोजीशन पे 5, सेकेंड पोजीशन पे 4 एंड थर्ड पोजीशन पे कितने आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं। सो 5 into 4 20, 20 into 3 60, तो 3 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर कितने बनेंगे, 60 बनेंगे। 4 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, फर्स्ट पोजीशन पे 5, सेकेंड पे 4, फिर 3, फिर नेक्स्ट पे ओनली 2, सो 5 4 3 2 एंड नेक्स्ट 5 डिजिट कितने आएंगे रे, 5 4 3 2 1। क्यों, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। Here also answer is 120, here also answer is 120, this is also 5 factorial, this is also 5 factorial, बस यहाँ पे into 1 नहीं है। चलिए अभी टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, हमें सभी को ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल 325 registration numbers can be formed with the given numbers, with the given digit where नो डिजिट इज नॉट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज गिवन दैट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed by joining 12 different points on a plane, no 3 of them being collinear, with the exception of 4 points which are collinear। ट्रायंगल हमें बनाना है, ट्रायंगल कैसे बनता है, कितने पॉइंट की जरूरत है, कितने वर्टाइसेस की जरूरत है, आई नीड 3 वर्टाइसेस टू मेक अ ट्रायंगल। कंपल्सरी मुझे 3 पॉइंट चाहिए। अब वो 3 पॉइंट कैसे चाहिए, तो वो प्लेन में होने चाहिए, वे दे शुडंट बी कोलिनियर। देखो यहाँ पे एक वर्टाइस, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। कैन आई मेक अ ट्रायंगल फ्रॉम दिस 3? अब आप बोलोगे मैम आपने ही तो बोला था 3 पॉइंट की जरूरत है। अरे हाँ जरूरत है, बट वे 3 पॉइंट कैसे होने चाहिए, थोड़ा रैंडम पोजीशन पे होने चाहिए। इन 3 पॉइंट से तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, लाइकवाइज ऐसे रैंडम पोजीशन पे होना चाहिए। तो अभी देखो
Can I make a triangle from this 3 point? Definitely. Can I make a triangle from this 3 point? Definitely. Can we make a triangle from this 3 point? Definitely. But can we make from this 3? No. तो ऐसे ही दिया गया है 12 डिफरेंट पॉइंट से एक प्लेन में, नो 3 ऑफ देम बीइंग कोलिनियर, वेदर देयर इज एक्सेप्शन दैट ये 4 पॉइंट जो है कोलिनियर है। ठीक है, यस। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इरेज दिस पार्ट। नाउ लुक हियर, अब थोड़ी देर के लिए समझ लो, मेरे पास सभी के सभी पॉइंट्स जो है वो प्लेन में है, कुछ भी कोलिनियर नहीं है, सभी पॉइंट रैंडम है। अगर ऐसा केस है तो हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? 12 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ट्रायंगल बनेंगे। कितने? 12C3। दीज आर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। बट वेट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शन है? अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कंडीशन इज गिवन बाय क्वेश्चन? एक्सेप्शन है कि 4 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। तो जब उन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट सिलेक्ट हो गए या कोई भी, यस, उन 4 पॉइंट में से जब 3 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, तब क्या हमारा ट्रायंगल बनेगा? नहीं। बट ये 12C3 मुझे क्या देगा? दिस 12C3 gives me that conditions also. So now I have to ignore that condition. So what it will be? I have to ignore this 4C3. When collinear points are used, it does not give me a triangle. So to find actual number of triangles, I have to subtract this 4C3 from 12C3. So number of triangles with only non-collinear points will be what? 12C3 minus 4C3. So NCN minus 1, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है स्टार्टिंग में ही, एंड द फॉर्मूला फॉर इट इज N itself. ठीक है, सो 12C3 इसको अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस NCN minus 1 का रिजल्ट हमेशा N आता है। द आंसर इज व्हाट? 4. So 12 factorial divided by what? 3 factorial into 9 factorial. Look here, 12 into 11 into 10 into 9 factorial, this 9 will get cancelled. This minus 4 को थोड़ा as it is रखो. Now look here, 3 4s are 12 and 2 5s are 10. ठीक है, so 11 into 5 into 4 minus what? 4. 11 into 5 into 4 220 आता है, 4 माइनस कर देंगे उसमें से, तो आंसर विल बी व्हाट? 260. ठीक है, so how many triangles can be formed with only non-collinear points? It is nothing but 260. Okay, चलिए क्विकली अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पे, if there are 9 horizontal lines and 9 vertical lines in a chessboard, how many rectangles can be formed in the chessboard? 9 horizontal lines है, 9 vertical lines है, हमें रेक्टेंगल बनाना है। अब अगर रेक्टेंगल बनाना है तो कितनी वर्टिकल लाइन की जरूरत है? 2 वर्टिकल लाइंस की जरूरत है, एज वेल एज 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत है, तब जाके हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा। तो हमारा सिलेक्शन कैसे होना चाहिए? 9 हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 9C2, 9 वर्टिकल लाइन में से 2 वर्टिकल लाइन, अगेन 9C2. नाउ टू मेक अ रेक्टेंगल आई वॉन्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस एज वेल एज वर्टिकल लाइंस, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कंडीशन कौन सा आएगा? एंड का कंडीशन आएगा। चलिए लेट अस क्विकली फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, 9C2 into 9C2. Okay, whenever such a condition comes in front of you, you can definitely do one operation over here. क्या है वो? 9C2 का स्क्वायर। इसका मतलब आपको रिपीट फाइंड करने की जरूरत नहीं, 9C2 का आंसर फाइंड करो, उसका स्क्वायर बना दो। डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। चलिए 9C2 को अभी सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू व्हाट? 7 फैक्टोरियल होल का स्क्वायर। 9 into 8 into 7 factorial divided by 2 factorial is 2 into 7 factorial. So this get cancelled. 2 4s are 8, 9 4s are 36. So we have to find square of 36. So what is the square of 36? It is nothing but 1296. ठीक है? Yes. I hope the question is clear to everyone. कुछ नहीं, हमें क्या करना है? बस सिलेक्शन करना है, और जो टोटल दिया है उसमें से क्या रिक्वायरमेंट है देखना है, एंड की जरूरत है या और की जरूरत है।
सो लाइकवाइज यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें 2 वर्टिकल लाइन चाहिए थे एज वेल एज 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए थे, ठीक है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, 25 buses are running between two places P and Q. In how many ways can a person go from P to Q and return by a different bus? दो प्लेसेस है P एंड Q, 25 बसेस रन करती है दोनों के बीच में, दोनों भी प्लेसेस में, ठीक है। यस, सो हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम P टू Q एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस? जाते वक्त वो कोई भी बस ले सकता है, बट आते वक्त वो बस नहीं ले सकता जिससे वो आया है। लेटेस्ट से हम क्या करेंगे, इसको अभी लेबल्स देंगे 1 to 25। बसेस का नंबर क्या है, 1 to 25 में से कुछ भी होगा। अज्यूम करो वो 16th नंबर के बस से गया है, सो आते वक्त क्या वो ये बस इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कंडीशन डाला हुआ है उसने। तो 16th नंबर की बस छोड़ के उसके पास रिमेनिंग कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? रिमेनिंग 24 ऑप्शंस अवेलेबल है। सो व्हाट आर द कॉम्बिनेशन? चलिए क्विकली चेक करते हैं। देखो यहाँ पे he can go in any of the bus, so how many choices are available? उसको कितने choices है रे? अवेलेबल ऑप्शन है 25, ठीक है। आते वक्त क्या होता है, he has to use compulsory different bus for a return journey, so वो एक एक्सक्लूड कर दो। तो उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे वो गया है उसको एक्सक्लूड कर दो, तो उसके पास 24 ऑप्शंस अवेलेबल है। सो टोटल कॉम्बिनेशंस आर नथिंग बट 25 into 24. So what is the answer over here? The answer over here is 600. तो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं रे? 600 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जहां पे हम ये उसको उसका जर्नी पॉसिबल होता है। कंडीशन क्या है? जाते वक्त सभी ले सकता है, आते वक्त बस एक उसको एक्सक्लूड करके उसको बाकी के कंसिडर करने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, there are 10 points on a straight line AB and 8 on another straight line AC, none of them being point A. A उसमें से वो पॉइंट नहीं है। A को छोड़ के 10 पॉइंट है और दूसरे लाइन पे 8 पॉइंट है। How many triangles can be formed with these points as vertices? ठीक है, पहले तो सिनारियो समझ लो। एक लाइन है AB, ठीक है, देखो दिस इज अ लाइन AB। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स है? 10 पॉइंट्स है। लेटस से सभी ड्रॉ नहीं करूंगी, 3-4 ड्रॉ करती हूँ। लेटस से यहाँ पे 6 पॉइंट्स ड्रॉ किए। दिस इज अ लाइन ए। नाउ देयर इज वन मोर लाइन AC, इसका मतलब मुझे यही से शुरू करना पड़ेगा, दूसरी लाइन लेनी पड़ेगी AC। और इस लाइन पे कितने पॉइंट्स है? सिर्फ 8 पॉइंट्स है, ठीक है। अब ट्रायंगल कैसे बन सकता है रे? 3 पॉइंट की जरूरत है। अभी अभी हमने ट्रायंगल का एक क्वेश्चन लिया, 3 पॉइंट की जरूरत है। अब 3 पॉइंट लीनियर चलेंगे क्या? नहीं चल सकते, वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। 2 पॉइंट हाँ चल सकते, कोई बात नहीं। तो देखो पहला केस क्या हो सकता है, आइदर हम यहां से 2 पॉइंट सिलेक्ट करें, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड बना रही हूं मैं, यहां से 2 पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट आएगा दूसरे लाइन से। चलो इनको ज्वाइन कर दो। इज इट अ वैलिड ट्रायंगल? बिल्कुल वैलिड है। इन अनदर केस हम इस लाइन से 2 वर्टाइसेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड इस लाइन से ओनली 1। इज इट अ पॉसिबल केस? डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड भी आएगा और भी आएगा। कैसे आएगा? तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं। लाइन ए बी 10 पॉइंट्स, लाइन ए सी 8 पॉइंट्स। आई इरेज दिस पार्ट। ए बी पे 10 पॉइंट है, ए सी पे 8 पॉइंट है। ए उनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है, प्लीज इसको एक्सक्लूड करो। नाउ टू फाइंड माय एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, व्हाट इज द कंडीशन? मुझे ए बी लाइन में से 2 वर्टाइसेस लेने पड़ेंगे एंड ए सी लाइन में से एक वर्टाइसेस लेना पड़ेगा। अभी मैंने आपको सिनारियो ड्रॉ करके दिखाया। यस, कंपल्शन है 3 वर्टाइसेस का, इसलिए क्या यूज किया जाएगा? एंड। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, हम ए बी लाइन से एक वर्टाइसेस सिलेक्ट करेंगे, ए सी लाइन से 2 वर्टाइसेस सिलेक्ट करेंगे। आइदर गो इन दिस वे और गो इन दिस वे, बोथ आर पॉसिबल। तो चलिए सॉल्व करते हैं अभी इसको। 10C2 लाइन ए बी में 10 पॉइंट है, 10 में से 2 को सिलेक्ट करो एंड
लाइन AC पे 8 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट सेलेक्ट करो, हो गया एंड का कंडीशन, कंपल्शन इधर है। प्लस लाइन ये कौन सा है अभी, हाँ सेकंड वन, लाइन AB में से एक ही पॉइंट लेने वाले हैं हम 10C1 एंड लाइन AC में से हम क्या करेंगे 2 वर्टाइसेस, दैट इज व्हाट 8C2। चलिए NC1 का आंसर क्या आता है रे, n आता है। 10C2 को हम अभी सॉल्व करते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 8C1 का आंसर आएगा 8, 10C1 आंसर आएगा 10, 8C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, सो 10 9 into 8 factorial divided by 2 into 8 factorial, this get cancel here, 8 7 6 factorial divided by what, 2 into 6 factorial। All right, now what all remains over here, look here, 10 8 2, 10 8 2 दोनों जगह पे सिमिलर है, सो कैन वी टेक इट आउटसाइड द ब्रैकेट, कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो जैसे आप कॉमन लेते हो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाते हैं। सो व्हाट ऑल रिमेन्स इन ब्रैकेट, 9 रिमेन्स, what all remains over here, only 7 remains, so 10 into 8 divided by 2 multiplied by 9 plus 7, हमने यहाँ से कॉमन लिया है, 2 5s are 10, 5 8s are 40, 40 into 9 plus 7 16, so 40 into 16 will be what, 640। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है रे, 640 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, ऑल राइट, आई होप द सिनेरियो इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एट लिस्ट एंड एट मोस्ट। क्या है, एट लिस्ट एंड एट मोस्ट। ना सबसे पहले तो एट लिस्ट का कंडीशन, अब देखो एटलीस्ट इतना तो कर मेरे लिए, हम बोलते हैं कि नहीं रे, जब बोलते हैं यस बिल्कुल बोलते हैं। अब देखो सिनारियो समझते हैं हम, लेट अस से मुझे ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करना है, वेदर इट इज ऑनलाइन वेदर इट इज ऑफलाइन, मुझे मिनिमम कितने स्टूडेंट की जरूरत है, कम से कम एक स्टूडेंट तो सामने चाहिए, तभी मैं अपना सेशन शुरू कर सकती हूँ, राइट। अच्छा 4 स्टूडेंट रहेंगे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 15 रहेंगे, बिल्कुल चलेगा, 50 रहेंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं, 100 रहेंगे, कोई इशू नहीं है। बट व्हाट इज माय मिनिमम रिक्वायरमेंट, माय मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1, कम से कम एक स्टूडेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, व्हाट अबाउट एट मोस्ट, चलो अब मैंने क्या किया है, मुझे एक रिक्वायरमेंट है, एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को हायर करना है, एक पोजीशन है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आई कैन हायर, ओनली वन, कैन आई हायर 2 कैंडिडेट्स फॉर अ सिंगल पोस्ट, नो नॉट एट ऑल, मैं हायर नहीं कर सकती। ठीक है, यस, बट हाँ कभी कभी ऐसा केस आ सकता है ना कि जितने भी कैंडिडेट्स मेरे सामने आए हैं उसमें से कोई भी मेरे क्राइटेरिया में फिक्स ना बैठा हो, तो उस वक्त में क्या होगा रे, 0 कैंडिडेट्स हो गए, मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूंगी। ठीक है, सो एटलीस्ट 1 मतलब मिनिमम 1 इज मैंडेटरी, एट मोस्ट 1 मतलब मैक्सिमम शुड बी 1, उसके आगे नहीं जाना है। चलिए अभी देखो यहाँ पे, at least 1 minimum 1 is mandatory, the selection must be greater than or equal to 1, at least n, in general आपको कोई भी ऐसा पूछेगा ना, at least 5 at least 6 at least 8, right, so at least n का मीनिंग क्या है, selection must be greater than or equal to n, let us say at least 4, क्या होना चाहिए, शुरुआत 4 से होनी चाहिए, 5 6 7 उसके आगे everything is okay। Yes, now at most 1 में maximum should be 1, the selection must not be greater than 1। अभी यहाँ पे गलती से आप बोल दोगे कि हाँ greater than 1 है, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं है, मतलब आप लोग क्या कह दोगे, लेस देन 1 कह दोगे, बट प्लीज ऐसा मत कहना, लेस देन 1 निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं एंड सिलेक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यस, ओके, सो इन जनरल हाँ एट मोस्ट 1 का मीनिंग क्या है, सिलेक्शन मस्ट बी आइदर 0 और 1, या तो एक कैंडिडेट को मुझे हायर करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई क्राइटेरिया में नहीं बैठता है तो आई कांट हायर एनीवन। नाउ in general at most n means what, selection varies from 0 to n, 0 से शुरुआत होगी n तक ही चलेगा। let us say at most 5, it can be 0 it can be 1 can be 2 can be 3 can be 4
can be 5 but not more than that. So this is nothing but at least and at most. ठीक है, चलिए अभी बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम कुछ क्वेश्चन, एक पहले तो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कंडीशन आएगा हम चेक करेंगे. देखो यहाँ पे इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सिलेक्टेड सच दैट एट लीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर. ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने बॉयज है, 6 बॉयज है. कितनी गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है. 4 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने हैं. बट क्या हमें क्लियरली मेंशन करके दिया है कि उनका ग्रुप कैसा रहे? नहीं दिया है. क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सभी के सभी गर्ल्स होंगे, सभी के सभी बॉयज होंगे, या फिर 2 गर्ल रहेंगे 2 बॉयज रहेंगे, 1 बॉय रहेगा 3 गर्ल रहेंगे, या फिर 1 गर्ल रहेगी 3 बॉय रहेंगे. So lot many different combinations are possible and yes we have to cover each and every. तो चलिए चेक करते हैं कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. सबसे पहला केस ऑल 4 आर गर्ल्स. डू रिमेंबर वन थिंग, एटलीस्ट का कंडीशन हम थोड़ा सा बाद में लेने वाले हैं, पहले तो कॉम्बिनेशन चेक करो. ठीक है, 0 बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इट इज अ पॉसिबिलिटी. उसके बाद 1 बॉय 3 गर्ल, सिलेक्शन कैसा होगा, 6C1 4C3. अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल क्यों है रे, एंड का सिंबल क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज मुझे मेरे ग्रुप में गर्ल भी चाहिए बॉयज भी चाहिए, दिस इज अ कंपल्शन. इसलिए बीच में क्या सिंबल आ रहा है, एंड का सिंबल, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल. ओके, नेक्स्ट अनदर कंडीशन 2 गर्ल 2 बॉयज, अनदर कंडीशन 3 गर्ल 1 बॉयज, या लास्ट में ऑल 4 मे बी बॉयज. सभी कंडीशन पॉसिबल है. बट इकट्ठे सभी को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते. आइदर यू हैव टू सेलेक्ट इन दिस वे or in this way. ठीक है, either in this way or in this way, either this or this, either this or this. तो likewise इनके बीच में क्या सिंबल आएगा रे, एडिशन का सिंबल आएगा. ठीक है, यस. नाउ अभी हम जाते हैं एटलीस्ट 1 की कंडीशन की तरफ. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सिलेक्टेड such that at least 1 boy should be there. Now, if you could see the first group, how many boys are there? 0 boys. And what my condition says, at least 1 तो होना चाहिए, उसके ऊपर चलेंगे, but 1 से कम नहीं चलेगा. So, is this a valid group? No. Please इसको इग्नोर कर दो. Now, ये जो चारों ग्रुप है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, the definite answer is 209. But I do not want to do in this way. मैं इस वे से नहीं करना चाहती बिकॉज दिस विल गिव मी अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. ठीक है, फिर इसको क्विक वे में कैसे किया जाए. तो जरा देखो यहाँ पे, हाउ मेनी बॉयज डू वी हैव, 6 बॉयज. हाउ मेनी गर्ल्स डू वी हैव, 4 गर्ल्स. इन ऑल टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल 10 स्टूडेंट्स आर देयर. सिलेक्शन मुझे किस में से करना है, 10 में से ही करना है. So can we do 10C4 over here? Definitely कर सकते हैं. ये 10C4 मुझे क्या देगा, मैं बताती हूँ. 10C4 will give me this possibility, this possibility, this possibility, this possibility as well as this possibility. क्या करना है हमें, 6 बॉयज 4 गर्ल, सीधा सीधा इसको इकट्ठा कर दो. 10C4, 4 क्यों रे, क्योंकि हमें 4 लोग ही सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, now 10C4 will give me all these possibilities. ठीक है, बट क्या मुझे सभी चाहिए, क्या मुझे सभी चाहिए, नहीं चाहिए. एटलीस्ट 1 का कंडीशन है, माई रिक्वायरमेंट इज ओनली दिस. ठीक है, सॉरी माई रिक्वायरमेंट लाइज फ्रॉम दिस टू दिस, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय. ये मुझे नहीं चलेगा, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, 10C4 से एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो चलिए सिर्फ हम अभी क्या करेंगे, 6C0 इंटू 4C4, ये रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे. 10C4 से हम उसको माइनस कर देंगे. NC0 आंसर आता है 1, NCN आंसर आता है 1. सो 10C4 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा. लेट अस सॉल्व 10C4.
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 109876 factorial divided by 432 into 6 factorial. So this 6 factorial will get cancelled. 4 2s are 8, इसके साथ cancel हो जाएगा. 3 3s are 9. So 7 3s are 21. 21 into 10 is what? 210. So 210 में से 1 minus कर दो. The answer will be what? 209. See how quickly we got the answer. अगर आप अर्लियर कैलकुलेशन करोगे तो इट विल कंज्यूम योर टाइम अ लॉट. सो प्लीज डू नॉट गो इन दैट वे. जो आपका रिक्वायरमेंट नहीं है वो यहाँ से माइनस कर दो. ओके, yes, I hope this at least condition is clear to everyone. Let us quickly move towards next. Yes, next अभी हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? Probability शुरू करने जा रहे हैं. Now quickly check करते हैं what is probability. Probability is nothing but the measure of likelihood that an event will occur in a random experiment. Probability क्या है रे? एक measure of likelihood है that an event will occur or not in a random experiment. Event होगा या नहीं, previous data study किया जाएगा, based on that conclusions निकाले जाएंगे कि हाँ is this possible or not possible. ठीक है? यस, सिंपल डेफिनेशन है. प्लीज इसके ऊपर उतना फोकस मत करो. अवर मेन फोकस इज ऑन क्वेश्चंस. थोड़ा सा एक दो स्टेटमेंट से जस्ट हम इसको देख लेंगे ताकि आपको भी पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी इज. द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द मोर लाइकली इट इज दैट द इवेंट विल अकर. जितनी ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उतना चांसेस है कि वो इवेंट होगा. ठीक है, जैसे जैसे हायर पॉसिबिलिटी उतना पॉसिबिलिटी है हाँ डेफिनेटली इवेंट होने ही वाला है. अगर सभी लोग बोल रहे हैं हाँ बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी तो डेफिनेटली होगी क्या? पॉसिबिलिटी है रे, पॉसिबिलिटी है. होगी या नहीं कुछ गारंटी नहीं दे सकते बट हाँ चांसेस जरूर है. समझ में ही आ रहा है ना कि चारों तरफ बादल छाए हैं, घने बादल है तो डेफिनेटली बारिश होने की संभावना है ही. डू रिमेम्बर वन थिंग, प्रोबेबिलिटी नेवर एक्सीड्स 1. आगे पॉइंट है, चलो देखो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी. Probability is equal to number of favorable outcomes divided by what? Total outcomes. Total outcome में वो सभी cases आएंगे जो हमारे लिए valid है as well as invalid है. Out of which हमें एक particular event के लिए क्या करना है? सिर्फ favorable conditions को consider करना है. So number of favorable outcomes divided by total outcomes will give me probability, and as I said you earlier that probability never exceeds 1. Total outcomes can be referred as sample space, and sample space हमें count निकालना पड़ता है एक, वो आगे चल के हमें पता चल ही जाएगा. ठीक है, एक से आगे प्रोबेबिलिटी कभी जा नहीं सकता. आप बोलोगे मैम 1.01, नहीं इतना भी आगे नहीं जा सकता. आप बोलोगे मैम 1.001, नो नॉट एट ऑल पॉसिबल. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, 0 to 1 तक ही होता है. ठीक है, उसके आगे ये कभी नहीं जाएगा. तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या है. क्वेश्चंस है हमारे लिए, प्लीज हैव अ लुक एट इट. 3 dice are rolled. What is the probability that you will get the sum of numbers as 10? क्या किया गया है? 3 डाइस रोल किए गए हैं. So what is the probability that you will get sum of numbers as 10? Now first of all it is really very important to know the sample space. Now how to calculate the sample space? Here sample space will come 6 cube. Now how this sample space will come I will quickly tell you. देखो एक डाइस जब आप थ्रो करते हो क्यूबिकल शेप का होता है, सभी को पता है राइट. 6 फेसेस रहते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर रहते हैं, 1 2 3 4 5 and 6 राइट. अब दूसरा डाई आप थ्रो कर रहे हो उस पे भी 1 2 3 4 5 6 यही नंबर रहेंगे. तीसरा डाई आप थ्रो कर रहे हो उस पे भी क्या रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 यही नंबर रहने वाले हैं. ठीक है, सो व्हेनेवर इट इज द कंडीशन ऑफ डाइस always 6 readings are compulsory, and जो remaining readings रहेंगे वो कैसे रहेंगे? तो देखो अगर आप एक डाई थ्रो करते हो उसका सैंपल स्पेस होगा 6:1. अगर आप 2 डाई थ्रो करते हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डाई का नंबर
अगर आप एक डाई थ्रो करते हो उसका सैंपल स्पेस 6:1, अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हो उसका सैंपल स्पेस रहेगा 6:2, अगर आप 3 डाइस थ्रो करते हो तो उसका सैंपल स्पेस रहेगा 6:3। ठीक है, इन जनरल अगर आप n डाइस थ्रो करोगे तो उसका सैंपल स्पेस रहेगा 6:n। ओके, यस। सो अभी देखिए यहाँ पे 1 die 6:1, 2 die 6:2, 3 die 6:3, n die 6:n. Why we are taking this as 6? Because always every die gives me a reading of 6 और जो भी आएंगे उसी के combinations में ही आने वाले हैं. All right, so I hope it is clear to everyone how to calculate the sample space. Okay, yes. Yes, so I hope this is clear to everyone how to calculate the sample space. Sample space कितना है रे? 6 to the power 3. Now यहाँ पे देखिए अभी हमारा कंडीशन क्या है? 3 डाइस रोल किए गए हैं. What is the probability that you will get sum of numbers as 10? अब 10 नंबर कहाँ, 10 ये सम हमें चाहिए. कहाँ से मिलेगा, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन से मिलेगा? तो देखो सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 6, 6 and 1 7, 7 and 3 10, 10 पॉसिबल यहाँ पे है सम. अब इसके कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? देखो 1 3 6 से हमें 10 सम मिलेगा. सिमिलरली 1 6 3 भी तो आएगा. यस, सिमिलरली 3 1 6 भी आएगा, 3 6 1 भी आएगा, फिर 6 1 3 भी आएगा, 6 3 1 भी आएगा. ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. इसी डिजिट के 6 अलग कॉम्बिनेशन आएगी. समझ में आ रही है बात? जहां से आपको 10 सम मिलता है. सो n ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? n objects can be arranged in n factorial ways. All right, so 3 factorial, that is nothing but 6. Okay, next अभी क्या पॉसिबिलिटी है? और 1 से रिलेटेड कोई पॉसिबिलिटी है क्या? चेक करते हैं. डेफिनेटली है. 1 and 5 6, 6 and 4 10. अगेन इसके कितने पॉसिबल केसेस आएंगे? 3 फैक्टोरियल. क्यों? 5 4 1 भी आ सकता है, 1 5 4 भी आ सकता है, 4 1 5 भी आ सकता है, तो वो सभी हमें कंसीडर करने हैं. इसलिए क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6. नेक्स्ट 2 3 5, 2 से शुरू करते हैं अभी. 2 3 5, 2 and 5 7, 7 and 3 10. अगेन यहाँ पे भी कितने आएंगे रे? फिर से 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6. 2 5 3, 2 3 5 2, लाइकवाइज ऐसे सभी कॉम्बिनेशन हमें लेने पड़ेंगे. नेक्स्ट 2 2 6. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. जब 2 2 6 हमारे पास रहता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज थोड़े कम हो जाते हैं. कैसे क्या? क्योंकि डिजिट 2 रिपीट हो रहा है ना, हमें रिपीटेशन क्या करने पड़ते हैं? एक्सक्लूड करने पड़ते हैं. सो अगेन यस, they can be arranged in 3 factorial ways, but as we have to exclude the repetition, you have to divide it by 2 factorial. And why by 2 factorial? Because ये जो डिजिट है 2 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, so 6 divided by 2, that is nothing but 3. Another possibility है 2 4 4. फिर से यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगी, बट मुझे रिपीटेशन एक्सक्लूड करने इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. 6 divided by 2, that is again 3. Then 3 3 4, again 3 repeat हो रहा है, 3 factorial by 2 factorial, 6 by 2, that is. So these all are combinations where we get sum of numbers as 10. यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3. सो टोटल ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन गए रे हमारे पास? 27 कॉम्बिनेशन बन गए. 6 plus 6 plus 6, this is 18. 18 and 9, it becomes what? 27. So out of my sample space, out of 216 possible cases, my favorable conditions are only 27. So what is the probability of this event? The probability of this event is
27/260। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है डेफिनेटली कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल है। 3 9s are 27, 3 7s are 21, 3 2s are 26, 9 1s are 9, 9 8s are 72. So what is the required probability? It is nothing but 1/8. तो हमें क्या करना है, सभी कॉम्बिनेशंस चेक करना है, फेवरेबल कंडीशंस में उसको कीप करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर, अ क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग इज गिवन टू सॉल्व 3 फ्रेंड्स whose chances of solving the question are 1/2, 1/5 and 1/6 respectively. Chances is nothing but the probability again. Now look here, what is the probability that the question will be solved? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है तीन दोस्तों को, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1/2 है, 1/5 है, 1/6 है। इट मीन्स देयर आर चांसेस दैट दे मे नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसका भी प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 फ्रेंड्स लेते हैं, लेट अस अज्यूम ए बी सी, सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी, नॉट सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी, एंड डू रिमेंबर वन थिंग, सॉल्विंग प्लस नॉट सॉल्विंग ऑलवेज 1 होता है। अपोजिट यस प्रोबेबिलिटी, उसका अपोजिट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। सो इफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग इज 1/2, सो नॉट सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस 1/2, टोटल में से 1/2 माइनस करो, दैट इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, देन व्हाट अबाउट बी, बी का प्रोबेबिलिटी क्या है सॉल्विंग का, 1/5, तो नॉट सॉल्विंग का कितना होगा, इट विल बी व्हाट, 1 माइनस 1/5, दैट इज नथिंग बट 4/5। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इट इज 1/6 एंड नॉट सॉल्विंग का क्या होगा, 1 माइनस 1/6, दैट इज नथिंग बट 5/6। हमें किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, बट कौन सॉल्व करेगा क्वेश्चन, यस सवाल आता है, कोई भी एक पर्सन ने भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट सभी ने क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए, कोई भी एक करेगा तो भी हम कहेंगे कि हाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले वर्स्ट केस कंसीडर करना पड़ेगा। वर्स्ट केस क्या होगा रे इस क्वेश्चन का, what will be the worst case, the worst case of this question will be that none of them will solve the problem। और उसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो none of them will solve the problem का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, डायरेक्टली तीनों के नॉट सॉल्विंग के प्रोबेबिलिटी ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1/2 इंटू 4/5 इंटू 5/6, सो दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। सो दिस 5 will be cancelled, 2 2s are 4, 2 3s are 6, so what is the probability of not solving, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, it is 1/3। now फिर से टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से 1/3 क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी किसका है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये 1/3 हम क्या करेंगे, 1 में से रिमूव कर देंगे। सो 1 माइनस 1/3 will give me what, 2/3, and this is nothing but the probability of question solving, and some of them, at least one of them will solve the question। कोई भी उनमें से एक पर्सन क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये उसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यस प्लीज कोई भी न्यूमर, यहाँ पे जो ऊपर के 3 वैल्यूज दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई मत करना, ये गलत हो जाएगा सिनारियो, क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे इट शोज दैट क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड बाय ऑल ऑफ देम एंड देन ओनली वी कैन से दैट कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। एक ने भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो वी कैन से दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, द प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड टू यू ऑलरेडी। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट P can solve a problem is 3/5 and Q can solve a problem is 4/7. Find the probability that at least one of them will be able to solve the problem. अभी अभी हमने वैसा ही क्वेश्चन किया है, बस फर्क क्या है, वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं था एटलीस्ट वन, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो अगेन हमारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलो लिख दो यहाँ पे P एंड Q, सॉल्विंग नॉट सॉल्विंग।
पी का सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5, तो नॉट सॉल्विंग का कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1 में से 3/5 माइनस कर दो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग इज 2/5. Q solves the problem is 4/7. What about not solving? You have to do 1 minus 4/7. So what is the answer? It is 3/7. तो सबसे पहले वर्स्ट केस कंसीडर करो, प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, 2/5 into 3/7. So what is the answer? 2 into 3 6, 5 7s are 35. Now नॉट सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया, सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी कैसा होगा रे, 1 माइनस नॉट सॉल्विंग, एंड इट विल गिव यू फॉर एट लीस्ट 1. So 35 minus 6, that is nothing but 29/35. So what is the probability that at least one of them will be solved? It is nothing but 29/35. Always in a such a type of question at least one का condition रहता है. ठीक है, चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है. देयर आर 2 bags, one of which contains 5 red and 7 white balls and the other contains 3 red and 12 white balls. A ball is to be drawn from one or the other of 2 bags. Find the chances of drawing a red ball. हमारे पास 2 बैग्स है, पहले बैग में रेड व्हाइट बॉल है, अनदर बैग में भी रेड व्हाइट बॉल है. ठीक है, अब बॉल ड्रॉ करना है हमें आइदर ऑफ द बैग में से. ठीक है, या तो इस बैग में से या तो उस बैग में से. एंड व्हाट इज द कंडीशन, दैट फाइंड द चांसेस ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. ठीक है, यस. अब करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैग 1 के टोटल बॉल निकालने पड़ेंगे. कितने हैं रे, 5 रेड 7 व्हाइट, दोनों मिला के 12 बॉल्स है. व्हाट अबाउट बैग 2, 3 रेड 12 व्हाइट, टोटल कितने बॉल्स है, 15 बॉल्स है. ये टोटल बॉल्स हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इसलिए. ओके, यस. चलिए नाउ अभी देखो, अगर हम बैग 1 सेलेक्ट करते हैं, so what will be the probability of getting a red ball, probability of drawing a red ball, from 12C1 you will get 5C1. टोटल ड्रॉ करते वक्त 12 बॉल में से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज माय सैंपल स्पेस, राइट. 12 बॉल में से कोई भी एक बॉल सिलेक्ट होगा. व्हाट इज माय रिक्वायर्ड कंडीशन, 5 रेड में से मुझे मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ मुझे रेड बॉल मिल गया. सो बैग 1 इज इक्वल टू व्हाट, 5C1 divided by what, 12C1. What about bag 2? चलो बैग 2 में 15 बॉल्स है. ठीक है, टोटल 15 बॉल में से मुझे मिलने वाला है, सैंपल स्पेस इज 15C1. यस, एंड व्हाट इज माय फेवरेबल कंडीशन, 3 रेड में से 1 रेड मुझे मिलना चाहिए. ठीक है, यस. नाउ ये तो हो गया बैग 1 और बैग 2 का, बट व्हाट अबाउट बैग का प्रोबेबिलिटी, बैग कौन सी सिलेक्ट होगी, उसका भी तो प्रोबेबिलिटी रहेगा कि नहीं. तो 2 बैग हमारे पास है, आइदर दिस और दिस, दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ रहेगा, कभी ये बैग कभी वो बैग, दोनों में से एक बैग, फ्रॉम 2 बैग 1 बैग. यस, सो बैग का भी प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा, बिकॉज बैग को भी सिलेक्ट करना है हमें. देखो अभी यहाँ पे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल, लेट्स से फ्रॉम बैग 1, बैग 1 के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, as well as बैग भी सिलेक्ट करना है, as well as बॉल भी सिलेक्ट करना है. सो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी ले लो यहाँ पे 5C1/12C1 प्लस सेकेंड बैग, अगेन इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3C1/15C1. बॉल आइदर इस बैग में से आएगा या फिर इस बैग में से आएगा. ओके, इसलिए बीच में कौन सा सिंबल डाला गया है, आर का सिंबल डाला गया है. चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं. 1/2 into 5/12, बिकॉज NC1 आंसर हमेशा क्या होता है, n होता है. 1/2 into 3/15, 3/15 को सिंप्लीफाई कर सकते हो आप 1/5 से. ठीक है, यहाँ पे देखो अभी 1/2, इसको तो अभी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए कीप इट एज इट इज. 5/24 प्लस 3/30, अच्छा मैंने इसको भी एज इट इज रखा है, चलिए कोई बात नहीं, ऑल राइट. 1/6 हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, so 6 4s are 24, न्यूमरेटर में 5 बचता है, यहाँ पे 3 as it is, 6 5s are 30. Now we will perform cross multiplication on this. 1/6 into 25 plus 12 divided by what, 20.
25 प्लस 12 कितना आता है 37, 37 by 20, so 37 divided by 20 into 6 कितना आता है 120. This can't be solved further, so please keep it as it is. Do remember one thing, सिर्फ यहाँ पे बॉल ड्रॉ नहीं करने हैं, तो हमें बॉल्स के साथ साथ जो है बैग भी ड्रॉ करना है, इसलिए हमें बैग का प्रोबेबिलिटी भी ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, बैग का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, दो बैग में से कोई भी एक बैग रैंडमली सिलेक्ट होगा. नेक्स्ट, 3 dice are thrown together, find the probability of getting a total of at least 6. ठीक है, फिर से एक एटलीस्ट का क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए ना. देखिए अभी यहाँ पे एटलीस्ट 6 जब हम कहते हैं तो हमारा समेशन क्या होना चाहिए रे, 6 से शुरू होना चाहिए, फिर 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, लाइकवाइज आगे के सभी डिजिट पॉसिबल है. 3 डाई जब हम थ्रो करेंगे मैक्सिमम समेशन क्या होगा रे, मैक्सिमम समेशन सभी डाई पे 6 6 6 यही नंबर होगा, तो मैक्सिमम समेशन विल बी व्हाट 18. सो देखो 6 से शुरू करना है, 18 तक के समेशन होने चाहिए. इसका मतलब ये क्लियर है कि हमें इसके पहले जो भी आते हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा. यस और नो. मिनिमम समेशन क्या है, अगर 3 डाई आप थ्रो करते हो मिनिमम समेशन है 1 1 1. 2 समेशन यहाँ पे नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा. सो आपको 3 सम नहीं चलेगा, 4 सम भी नहीं चलेगा, एज वेल एज 5 भी नहीं चलेगा. तो ये केसेस आपको एक्सक्लूड करने हैं. अभी आप बोलोगे कि मैम हमें तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6 का निकालना है, तो हम इस पे क्यों फोकस करें ना. अरे फोकस इसलिए क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज कम आते हैं, इसलिए करना है. ठीक है, यस. सो बेटर व्हाट वी विल डू, we will calculate for this probability. ये केसेस हम कैलकुलेट करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, छोटा सा रहेगा, 1 में से माइनस करेंगे, रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी किसका होगा रे, एटलीस्ट वाला ही प्रोबेबिलिटी रहेगा. चलिए अभी देखते हैं कौन से केसेस पॉसिबल है जहां पे 3 4 और 5 सम आ सकता है. सबसे पहले 1 1 1 3 सम आएगा, यस. नेक्स्ट 1 1 2 आएगा, यस. 1 2 1 भी रहेगा, 2 1 1 भी रहेगा. 3 केसेस अनदर पॉसिबल. फिर 1 2 2 क्या आएगा समेशन, यहाँ पे 5 आएगा. देन 2 1 2 इज ऑल्सो पॉसिबल, 2 2 1 इज ऑल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट 3 से रिलेटेड चेक करते हैं, 1 3 1 1 1 3 3 1 1 इज ऑल्सो पॉसिबल. तो टोटल ऐसे सिर्फ 10 केसेस है जिनमें हमें समेशन क्या मिलता है, आइदर 3 और 5 और 4 और 5. सो we will find the probability for this 10. क्या होगा रे probability इसका, it will be 10 divided by 216. why 216, because हम 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होने वाला है, सैंपल स्पेस विल बी 6 क्यूब, दैट इज नथिंग बट 216. ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी फॉर सम लेस देन 6 हमें मिल गया, बट ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगा वो किसका रहेगा, it will be for at least 6. So 216 minus 10, that is 206 by 6. Let us solve this. कैसे solve कर सकते हैं, 6 से divisible है क्या रे, नहीं 6 से तो divisible नहीं है, 2 से divisible है, तो yes 2 3s are 6, 2 1s are 2, this is 0 and 2 3s are 6. Yes, so what is the probability, the probability for at least 6 will be 103 by 3. तो कभी कभी अगर एटलीस्ट दिया गया है तो बेटर हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने वो गर्ल बॉय के क्वेश्चन के लिए किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी करना है. ऑलराइट, यस. चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या आ रहा है. या लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, लुक हियर, देयर आर 12 boys and 8 girls in a tuition center. If 3 of them scored first rank, then what is the probability that one of the 3 is a girl and the other are 2 boys? ठीक है, yes. 12 boys है, 8 गर्ल्स है, तो टोटल कितने हो गए रे, 20 स्टूडेंट्स हो गए. यहाँ पे गलती से भी सैंपल स्पेस 20 मत ले लेना. क्यों, आप बोलोगे मैम आपने तो कहा है टोटल करना है, नहीं, थोड़ा सा वेट करो. कंडीशन क्या डाला है, इफ
3 of them scored first rank. किन लोगों ने पहला रैंक स्कोर किया होगा इन 20 लोगों में से? डू यू नो एनीथिंग? रैंडमली कुछ भी आ सकता है, 4-5 भी लोग हैं तो ये 3 रहेंगे, वो 3 रहेंगे, कौन से 3 रहेंगे हमें पता है क्या? नहीं पता है। सो सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारा? द सैंपल स्पेस विल बी व्हाट? 20C3। समझ में आ रही है बात? और ये मुझे क्या देगा? This will give me sample space for the students who secured rank 1. कितने ways हो सकते हैं रे? आपको बताया गया है, that is nothing but 20C divided by 3. All right, I hope this is clear to everyone, this condition. Just give me a moment. Yes, so 20C3 is our sample space. Okay, अब देखो, what is the probability that one of the 3 is a girl and other 2 are boys? अब गर्ल कहाँ से मिलेंगे हमें? 8 गर्ल्स में से मिलेंगे, तो गर्ल्स के केसेस कितने आएंगे रे? इट विल बी 8C1, राइट? बॉयज कितने में, बॉयज में से सिलेक्ट होंगे? 12 बॉयज में. सो व्हाट आर आवर केसेस? इट विल बी व्हाट? 12C2. सो the required probability is 8C1 into 12C2 divided by 20C3. Why we have taken here 20C3? क्योंकि हमें पता नहीं है किस 3 स्टूडेंट ने रैंक सिक्योर किया है, उसका क्या कॉम्बिनेशन है. तो दिस 20C3 will give me all the possible cases जहां पे ये 1 गर्ल 2 बॉय सभी रहेंगे, या 2 गर्ल 1 बॉय ऐसा भी रहेगा, ऑल 3 गर्ल रहेंगे, ऑल 3 बॉयज, ये सभी मुझे उसमें मिलेगा. उसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? 1 girl and 2 boys. Okay, so 8C1 into 12C2. So NC1 answer is what? N. इसको अभी सॉल्व करेंगे हम. 12 factorial divided by what? 2 factorial into 10 factorial. Again 20 factorial divided by what? 3 factorial into 17 factorial. चलिए let us solve this. 8 into 12 into 11 into 10 factorial divided by what? 2 into 10 factorial. Now whole divided by 20 into 19 into 18 into 17 factorial divided by 3 into 2 into 17. This is get cancel. 17 factorial, 10 factorial भी cancel हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे कुछ cancel out हो सकता है क्या? Yes, definitely cancel out हो सकता है. So ये 2 हम cancel कर देंगे because दोनों जगह पे denominator में है, इसलिए cancel out हो जाएगा. Here 3 6 are 18. Can we cancel like this? Yes, definitely. अब I guess इसके अलावा कुछ cancel नहीं हो सकता. Yes, so 8 into 12 into 11 divided by what? 20 into 19 into 6. So 6 2s are 12. Then 2 1s are 2 and this is 0 as it is. 2 4s are 8, 2 5s are 10. 11 into 4 it is 44. 19 into 5 it is 95. So 44 by 95 is the probability of what? जो भी 3 स्टूडेंट ने रैंक सिक्योर किया है उसमें से एक गर्ल है, बाकी के 2 बॉयज है. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. लेट अस क्विकली चेक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट अभी हम थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे. कार्ड्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो देखो यहाँ पे हमारे पास हमारे सेट में कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल वी आर हैविंग 52 कार्ड्स विद अस. हमारे कार्ड के सेट में 2 जोकर्स भी होते हैं. सो विथ दिस टोटल 52 कार्ड्स 2 जोकर भी होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. बट डू रिमेम्बर वन थिंग, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो उन जोकर्स को कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, जस्ट एक्सक्लूड देम. अमंग दिस टोटल 52, 26 आर रेड, 26 आर ब्लैक कार्ड्स. ठीक है, 26 रेड 26 ब्लैक इक्वल है. Next, out of this 26 red cards, 13 are hurt cards and 13 are diamond cards. Okay, out of this 26 black cards, 13 are spade cards, 13 are club cards. Equal है सभी में. Now among this 13 sets, अभी देखो यहाँ पे 10 जो है नंबर कार्ड रहेंगे 1 से लेके 10 तक, 3 जो है फेस कार्ड रहेंगे. हर्ट के लिए हो गया. सिमिलरली ये डायमंड के लिए रहेगा, सिमिलरली स्पेड के लिए, सिमिलरली क्लब के लिए भी रहेगा.
So in this our set we are having total 40 number cards plus 12 face cards. Okay, जोकर को तब तक कंसिडर नहीं करना है जब तक बोला ना जाए. ओके, चलिए अभी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. देखो यहाँ पे one card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card? ठीक है, सेट 52 कार्ड्स का है, तो हम जब कार्ड ड्रॉ करेंगे तो उस 52 में से ही निकलेगा. सो व्हाट विल बी आवर सैंपल स्पेस? आवर सैंपल स्पेस विल बी 52C1. व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? हमें जो कार्ड ड्रॉ किया है वो फेस कार्ड चाहिए. हमारे पास टोटल कितने फेस कार्ड है? हर्ट के 3, डायमंड के 3, स्पेड के 3, क्लब के भी 3. सो टोटल 12 फेस कार्ड है. सो व्हाट आर माय फेवरेबल कंडीशन? अगर इन 12 कार्ड में से एक कार्ड आता है, दैट इज माय फेवरेबल कंडीशन. ड्रॉ करते वक्त 52 में से ड्रॉ करना पड़ेगा. फेवरेबल सिर्फ किसके रहेंगे? फेस के लिए रहेंगे. सो 12 डिवाइडेड बाय 52, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 1 remaining, 4 3s are 12. So what is our required probability? 3/13. ठीक है, फेस कार्ड का हमने फाइंड कर लिया. हाउ टू फाइंड नंबर कार्ड का? नंबर कार्ड का क्या रहेगा रे? वी आर हैविंग 40 नंबर कार्ड्स विद अस. So 40C1 divided by what? 52C1, that is a sample space. Now, if you want to do this calculation, you can definitely do. But in our set of card, we are having only number and face cards, right? So if I know a probability of face card, can I calculate 1 minus 3/13? Can I do this? Yes, definitely. So number card का probability क्या रहेगा रे? 10/13 रहेगा. There is no need to go in this way. But if you want to do, you can definitely do it. All right? I hope this question is clear to everyone. चलिए अगला question देखते हैं अभी. From a pack of 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is 10 or spade? Remember one thing, और use किया गया है. Either मुझे 10 चाहिए या फिर मुझे spade card चाहिए. चलो, what will be my sample space? Again, 52 कार्ड में से सिर्फ एक कार्ड ड्रॉ करना है, इसलिए सैंपल स्पेस विल बी व्हाट? 52C1. नाउ लुक हियर, 10 कार्ड कहां से मिलेंगे मुझे? मेरे पास 4 10 है, हर्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का. तो 4 10 में से कोई भी एक 10 मुझे चलने वाला है. उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया इसलिए चलेगा. बट यहाँ पे मुझे कंपल्सरी स्पेड कार्ड चाहिए. स्पेड कार्ड कौन सा चाहिए? कौन सा भी चलेगा. So we are having 13 spade cards and out of which I can select any one. But wait a moment. क्या आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है? कुछ गलत लग रहा है? Yes, definitely. Something is wrong. And what is wrong? Remember one thing. हमारी कार्ड में, हमारी सेट में सिर्फ 52 कार्ड्स है. जरा यहाँ पे देखो, 4 10 आप ले रहे हो. अरे स्पेड में भी तो 10 रहता है ना, तो यहाँ पे 13 क्यों लेना है? 4 ही 10 है, यहाँ पे ये 10 हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है. सो दिस इज नॉट द वैलिड कॉम्बिनेशन. तो फिर कैसे करोगे? देखो, या तो 3C1 करो. 3C1 में मुझे क्या मिलेगा? हर्ट, डायमंड एंड क्लब का 10 मिलेगा. स्पेड का 10 कहां से मिलेगा? यहां से मिल सकता है 13C1 में से. ओके, व्हाट इज अनदर वे? Keep this 4C1 as it is. This will give me all 10s, hurt, diamond, spade, club. और मुझे स्पेड कार्ड चाहिए, तो स्पेड कार्ड में सिर्फ हम क्या करेंगे? 12 कंसीडर करेंगे. क्यों 12? बिकॉज ऑलरेडी स्पेड का 10 हमने यहाँ पे कंसीडर किया है. ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस कंडीशन. NC1 ऑलवेज n होता है. सो 3 + 13 डिवाइडेड बाय 52, 16/52, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So what is our probability? It will be 4/13. Even if you go with this condition, the answer will be same. 4C1 is 4, 12C1 is 12, divided by total probability. Sample space is what? 52. 16/52. Again, the answer will be 4/13. ठीक है, तो प्लीज रिपीट कार्ड कंसिडर नहीं करने हैं हमें. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्या आ रहा है अगले क्वेश्चन में? 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards.
the probability that one is spared and one is hurt. रिमेंबर वन थिंग, हमें एंड का कंडीशन इस्तेमाल करना है, मतलब मुझे स्पेड भी चाहिए, मुझे हर्ट भी चाहिए। अब हमें कितने कार्ड्स ड्रॉ करने हैं? 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। सो व्हाट विल बी माय सैंपल स्पेस? माय सैंपल स्पेस विल बी 52C2, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन से 2 कार्ड्स आएंगे, रैंडमली 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। 15 लोगों में से 11 लोग कितने वे में सिलेक्ट हो सकते हैं, हमने सीखा है 15C1। 8 लोगों में से 2 लोग कैसे सिलेक्ट हो गए? 8C2। 7 मेंबर में से 3 मेंबर कैसे सिलेक्ट हो गए? 7C3। तो वैसा ही है, 2 कार्ड 52 कार्ड्स में से कैसे ड्रॉ हो गए? इन अ वे 52C2। नाउ व्हाट इज माय कंडीशन? आई वांट वन स्पेड कार्ड, 13 स्पेड कार्ड्स मेरे पास है, सो 13C1। व्हाट अबाउट हर्ट कार्ड? Again I am having 13 hurt cards, so it will be what? 13C1. C1 is always n, so 13 into 13 divided by 52 factorial by 2 factorial into 50 factorial. Let us solve this. 13 into 13 divided by 52 into 51 into 50 factorial divided by 2 into 50 factorial. This will get cancelled, 50 factorial. 2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, 13 4s are 52, 2 2s are 4. So 13 divided by 51 2s are 102. So what is our required probability? Required probability is nothing but 13 by 102. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, okay, next is thank you over here. It means we are done with today's session. So I hope you all have enjoyed today's session a lot. We extremely apologize to all of you for today's inconvenience. ठीक है, प्लीज टेक्निकल इशू आया था, बट थैंक यू सो मच, आप सभी ने पेशेंटली वेट किया। थैंक यू so much for joining us in today's session. Please do meet us tomorrow as well at the same time and on the same channel. So tab tak, please enjoy the studies. Do take very good care of yourself. Thank you so much and bye bye.